we understood that supply is the quantity that is offered for sale by the seller at various prices during given period of time. So we have to understand the determinants of supply. लिख लेना determinants of supply. फर्स्ट इसका शॉर्टकट है टू प्राइस डिटरमिन. फर्स्ट price of the commodity. Price of the commodity itself is one of the important determinants of supply. Generally, there is a positive relation between the price and the quantity supplied. If the price of the commodity and quantity supplied of commodity compared, if you can sell the commodity at a higher price, you will earn more revenue, your sales will be more, your profit will be more, and therefore sellers will supply more when the prices increases. So when the prices increases, supply also increases. If the prices decreases, sellers can sell at rate, but they will get less revenue. And generally, if the prices decreases, supply also decreases. Reason is revenue. Increase in the prices, you can sell the same commodity at a more price. Your revenue will increase, you can increase your profit. If the prices decreases, same commodities now will fetch less revenue. Therefore, they will wait for increase in the price. They will decrease their supply. Okay? So, price of the commodity and the quantity supplied are directly related. They have direct relation, and this is only the law of supply, which talks about the relation, functional relation between the price of the commodity and the quantity supplied of that. Yes, a law of demand talks about the functional relation between the price of the commodity and the quantity demanded of it. Law of supply is a functional relation between the price of the commodity and the quantity supplied. Price of the related goods. Don't say complementary goods or substitutes. यहाँ पे just लिखना है price of related goods. What do you mean by this? Suppose this is a plot of land and example, there is a farmer who is cultivating example wheat. ठीक है? He is using his resources to cultivate wheat and he sells the wheat. The price of the wheat, if he sells in the market, is rupees, I don't know, पकड़ के चलो 50 per kg. Price of wheat. ठीक है? Suppose he thinks he can cultivate other commodity, other food grain, like you can take bajra. He can also cultivate bajra in the same field of land. If he cultivates wheat and the output will fetch him rupees 50 per kg, and suppose he sees in the market the price of bajra is rupees 60 per kg, so he will think, yaar, if he use the same land for the bajra,
if he used same land for the bajra, he could have earned more revenue. So next year he will cultivate bajra and he will reduce the cultivation of the wheat. उसके साथ बाकी farmers भी वही करेंगे, because generally the price of the bajra is more than the wheat. एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ. सो जिसकी प्राइस ज्यादा है उसमें प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे, इसलिए ऑल द प्रोड्यूसर्स और द सप्लायर्स विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट आइटम, एंड जो दूसरा जो आइटम जो प्रोड्यूस कर रहे थे पहले, दैट विल डिक्रीज. You will put your resources to produce the commodity which will give you more revenue. So in this example, the supply of the wheat will decrease and supply of the bajra will increase. So supply of wheat is also dependent on the price of the bajra. If the price of bajra increases, people will supply less of the wheat and supply more of the bajra. ये ओनियन के केस में बहुत बार होता है. When the prices of the onions increases, next year the supply of the onion increases because farmer thinks if they cultivate onion, that will help them to generate more revenue. Are you getting my point? So prices of other goods which you can produce with the resources with you. मैं यहाँ पे राइस नहीं ले सकता because wheat की लैंड राइस के लिए ठीक नहीं रही. मैं यहाँ पे एप्पल नहीं ले सकता, but बाजरा we can cultivate. So गिवन रिसोर्सेज जो मेरे पास लैंड है या जो भी मेरे पास रिसोर्सेज है, उनसे मैं दूसरी कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या? अगर यस, एंड अगर उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली आई विल कल्टिवेट मोर ऑफ दैट. ठीक है, आगे. सो प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स आल्सो डिसाइड्स द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी. लिख लेना, इफ प्राइस of related goods that can be produced with the same resources changes, right? Quantity supplied okay. If the price of the related goods that can be produced with some resources, with the same resources changes, quantity supplied of the existing goods will accordingly change. That is, if price of related goods increases, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एग्जिस्टिंग गुड, जो अभी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो, आप बोलोगे यार वो ज्यादा प्रोड्यूस करना प्रॉफिटेबल है, राइट? आप बोलोगे यार वो प्रोड्यूस करना प्रॉफिटेबल है, बराबर ना? कैसे? यू कैन प्रोड्यूस रिलेटेड गुड्स. मतलब क्या? आई कैन नॉट से व्हीट एंड एप्पल आर रिलेटेड गुड्स. यू कैन नॉट कल्टिवेट एप्पल इन महाराष्ट्र. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो आई कैन कंपेयर विद द थिंग व्हिच आई कैन cultivate in Maharashtra. That can be related goods. If the price of the related goods increases, quantity supplied of the existing goods will decrease. अब अगर वो goods produce करना better है, उसमें ज्यादा profit है, तो you will start producing that, and इसका supply कम होगा, आपके end पे भी होगा और बाकी sellers भी वही करेंगे. अगर वही दूसरी चीजें सस्ती हो जाती है, if you produce
देयर इज अनदर थिंग, बाजरा की प्राइस डिक्रीज हो रही है, जो बाजरा कल्टीवेट कर रहे हैं वो भी वीट का कल्टीवेट करना प्रोड्यूस करेंगे, वो क्या बोलेंगे यार वीट तो वीट करते हैं तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, वो तो करेंगे करेंगे और हम तो कर ही रहे, सो सप्लाई ओवरऑल विल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट थर्ड, ठीक है आगे, टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी and price of the related goods. B stands for development cost. Or cost of production. Generally, higher the cost, it is very costly to produce. Higher the cost, lesser the number of suppliers. Because a common man cannot start or he cannot afford to produce it. Like electricity generation, it's a very costly affair, therefore very less sellers. Telecom sector is very costly affair, produce करना ही costly है, किसी की भी बस की बात नहीं है। लाइक दूसरा एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इट्स वेरी कॉस्टली। ऑयल एक्सप्लोरेशन, इट्स वेरी कॉस्टली, वो टेक्नोलॉजी परचेस करना है, इट्स राइट, समवन कैन इवन नेवर थिंक अबाउट दैट, इट्स वेरी कॉस्टली अफेयर। बट वही आप वड़ा पाव की गाड़ी डाल सकते हो, राइट, आप होम ट्यूशन स्टार्ट कर सकते हो, इट इज नॉट दैट कॉस्टली अफेयर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो if the cost of production is very high, lesser the number of, right, sellers. If sellers are less, obviously output will be less. इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी अभी भी घर घर में नहीं है, ठीक है, मोदी जी बोल रहे हैं बट दैट इज नॉट द फैक्ट, ठीक है, हर गवर्नमेंट बोलती है, मोदी जी क्या पहले वाले भी बोल रहे थे, ऐसे कुछ नहीं है, बट दैट इज नॉट द फैक्ट, दैट इज रियलिटी, हार्श रियलिटी, एक्सेप्ट करो या ना करो, दैट इज रियलिटी। अभी हर घर में पानी नहीं है, हर घर में राइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है, उसका रीजन एक है, वी कैन नॉट ऑलवेज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, एक रीजन ऐसे भी हो सकता है कि उसका प्रोडक्शन ही बहुत कम लेवल पे होता है, रीजन वो जो प्रोड्यूस करने वाले फर्म्स है ना वही बहुत कम है, इट इन्वॉल्व्स वेरी हाई कॉस्ट एंड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट दैट मच, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, इट्स ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने वो करना चाहिए, ठीक है, जो उनसे होता है वो करते हैं, बट इट इज वेरी कॉस्टली अफेयर्स एंड प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज इतनी इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, उसके रिटर्न्स भी धीरे धीरे मिलेंगे ना, प्राइवेट वांट्स क्विक रिटर्न्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो जितनी हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी, लेसर द नंबर ऑफ सेलर्स एंड राइट आउटपुट विल बी लेस। Means supply will be less, output means supply will be less. वही अगर lower cost of production है, with lesser capital you can start the business, number of sellers will be more, larger the number of sellers, the number of sellers and supply will be more, जितने ज्यादा sellers उतना ज्यादा supply, simple है, railway is only one, monopoly है, mono means single, poly means seller, single seller, as compared to private transportation, रेलवे का सप्लाई वैसे कम है, हाँ रेलवे इज गुड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट नंबर ऑफ ट्रेन वगैरह जितने बसेस है ऑब्वियसली उतने तो नहीं है, अरे में जितनी ऑटोज है वगैरह, रीजन देयर इज ओनली सिंगल सेलर, देन सो डेवलपमेंट कॉस्ट
plays important role in deciding the supply in the economy. Next, E हो गया, D हो गया, E हो गया, नहीं D हो गया डेवलपमेंट कॉस्ट, E इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट. देखो, export means you, right, export the goods you from domestic market to transfer it to the foreign market, right? Export. जब आप एक्सपोर्ट करोगे, ऑब्वियसली डोमेस्टिक सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. एक्सपोर्ट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डोमेस्टिक सप्लाई, डिक्रीजेस डोमेस्टिक सप्लाई. एंड अगर आप इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डोमेस्टिक सप्लाई. लाइक जब ओनियन की प्राइसेस इंक्रीज होती है, इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट्स ओनियन फ्रॉम द पाकिस्तान, ठीक है, ये होता है. अब कितने भी किसको गालियां दो, वी इंपोर्ट, दैट इज द रियलिटी अगेन, बिकॉज पाकिस्तान इज आल्सो, राइट, वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स ऑफ ओनियन. जनरली वो ओनियन में प्रोड्यूस करते हैं. तो जब इंडिया में सप्लाई कम होता है ओनियन का, प्राइसेस बहुत इंक्रीज होती है, तो गवर्नमेंट का टारगेट है उसको कम करना, एंड देयरफॉर गवर्नमेंट फॉरेन मार्केट से, पाकिस्तान से इंपोर्ट करती है ओनियन, सो दैट इंडिया में फिर वो सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइसेस डिक्रीज हो जाए. दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, राइट ना, प्राइस कम हो जाएगी. सो इंपोर्ट करने से सप्लाई विल इंक्रीज, डोमेस्टिक सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स आल्सो चेंजेस द supply, domestic supply. Number 5. R stands for reserve of stock. Higher the stock, higher the reserves, higher is the ability to supply, right? More is the supply. अगर आपके पास स्टॉक है, you can increase the supply, more the supply. सिंपल है. अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं है तो आप सप्लाई कहां से करो? If stock reserve is lower या लेस, स्टॉक सी लेस, हायर या लोअर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेस विल बी द सप्लाई. बहुत सिंपल है. जितना ज्यादा स्टॉक उतना ज्यादा सप्लाई, जितना कम स्टॉक उतना कम सप्लाई, बिकॉज स्टॉक इज ए पोटेंशियल सप्लाई. 6 DETDER होगा, डिटरमिन है. अच्छा, मतलब ये मैंने स्पेलिंग लिखते टाइम गलत किया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. ये आर है ना, मैंने पहले लिया, ठीक है. टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी, देखो, टेक्नोलॉजी जितनी इंप्रूव होगी उतना आउटपुट भी इंप्रूव होगा, बिकॉज विद द टेक्नोलॉजी you can produce more with the lesser output. You can even produce more in the lesser time of time, like efficiency increase हो जाती है. So लिख लेना, advanced technologies, high end technology, advanced technology अगर यूज कर रहे हो आप, obviously supply will be more the supply. If you're gonna follow or if you're following advanced technology, like example, आपको ये पता है ना, हैंडलूम्स एंड मशीन लूम्स. मुंबई में पहले हैंडलूम्स थे, they have been replaced by machine looms. उस पे आज भी पॉलिटिक्स होता है, बराबर ना. तो हैंडलूम सेक्टर वो जो कर रहे थे वो बंद हो गया पूरा. मेनी पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, बट
आउटपुट पे देखो, जब मशीन लूम्स आ गए तो ओवरऑल आउटपुट हैज इंक्रीज्ड, देयर इज लेस वेस्टेज, क्वालिटी इंप्रूव हुई है, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। समझ में आ रहा है? सो इफ यू आर फॉलोइंग एडवांस टेक्नोलॉजी, the there will be more production and there will be more supply. And if you are following traditional, like हम अभी भी बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया इज नॉट दैट मच एडवांस्ड, बट जो फार्मर्स एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उनका आउटपुट ज्यादा है। एंड जब हम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर उस लेवल पे आ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। लेसर द सप्लाई। सही बात। सो एक्चुअली यहाँ पे मैंने थोड़ा मेरा आगे पीछे हो गया। DET स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेलर्स। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सेलर्स। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सेलर, जैसे एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बायर्स चेंजेस द डिमांड, expectation of the seller about the change in the price also changes the supply. Expectation of the sellers regarding changes in the prices. Changes in prices in the future. Like if sellers are expecting increase in the price, you are a seller and आपको लगता है कि एक दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद प्राइस इंक्रीज होगी। Instead of selling today, you will sell in the future. Your current supply will be less. आपको लगता है यही अगर मैं कल जाके सेल करता तो मुझे ज्यादा मिलेगा। लॉजिकल है। And if you are expecting कि prices will decrease, तो you will try to clear the stock as early as possible. समझ में आ रहा है? सो लिख लेना। Expectation is increase in the prices in the future. Increase in prices in future. If sellers are expecting the prices will increase in the future, current supply will be less. Today, आज मैं आज की बात कर रहा हूँ, current supply will is less. They won't sell. They will wait. They will hold. They will wait कि prices increase हो और फिर सेल करें. And if they expect decrease in the prices in the future, right? Current supply will be more. They will try to clear as much as to save, not to incur the losses. Try to understand. आपको लगता है कि कल ज्यादा प्राइस मिलेगी, you will sell tomorrow. वही buyer will purchase today. बायर को लगता है कि यार कल जाकर पे करना होगा, वो आज डिमांड करेगा और आप कल सप्लाई करने की बात करोगे। So there are two forces, demand and supply. Then and they work in opposite direction. अगर आपको लगता है कल प्राइसेस कम होगी, बायर कल डिमांड करेगा, आज नहीं, बट यू आर रेडी टू सेल टुडे। समझ में आ रहा है? सो expectations of the sellers regarding changes in the prices in the future do change current supply. 8 TETER हो गया। R मतलब वो रिजर्व स्टॉक। M stands for measures of government. You are a producer and government measures, maybe taxation, fiscal, right, policies, may be favorable or may be unfavorable measures. अगर favorable measures है, government is like levying less taxes, giving more subsidy, government is allowing you, right, more opportunities to you. अगर वो favorable है, government policies measures are favorable, obviously
you will produce more, supply will be more, right? Is more. एंड अगर यही गवर्नमेंट की पॉलिसीज अनफेवरेबल है, सप्लाई इज लेस. एग्जाम्पल, we are focusing more on the Swadeshis and we are trying to rely less on the Chinese product. So government is also, right, asking the citizens to buy the Swadeshi, yeah, made in India. Avoid buying made in China products, right? So if this is a government policy, you can see the Vivo has withdrawn its sponsorship. They know they cannot afford now. Maybe they cannot afford. हाँ, उसमें आईपीएल का लॉस हुआ. क्यों लॉस हुआ? बिकॉज वीवो की स्पॉन्सरशिप 400 करोड़ समथिंग थी. एवरेज स्पॉन्सरशिप 400 करोड़ थी, जो ड्रीम 11 में 222 करोड़ में ही इसमें आईपीएल का लॉस हुआ. बट द गवर्नमेंट इंटेंशन टुडे इज अगेंस्ट द चाइनीज प्रोडक्ट. दे आर एक्सपेक्टिंग लेसर सेल in India, suppose, and therefore they think it's not the time to advertise more in India. So they have withdrawn the sponsorship. Recent example. So if government is not in favor of you, your supply will decrease. If government is in favor, your supply will increase. But another example is of OnePlus. OnePlus is also Chinese product, but India में उसका अलग ही ट्रेंड है. मतलब जब OnePlus अभी लास्ट एक दो वीक या एक मंथ के बीच में आया था, इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल इन इंडिया. रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल मतलब इतना चल रहा था कि परचेस नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है. स्टिल पीपल परचेस्ड इट. मे बी पीपल थिंक मोर ऑफ द सर्विस, राइट? सो उनकी रहेगी इसलिए. नहीं, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नहीं होगा इतना सेल, बट कुछ तो विद इन सम मिनट्स और विद इन सम सेकंड्स पूरा सेल हो गया उनके. सो ऐसे भी हो सकता है. बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक दूसरा गवर्नमेंट बैन्स लाइक बियर शॉप्स और लिकर शॉप्स, राइट, ऑन हाईवेज, तो सप्लाई ऑफ लिकर like will decrease. Government policy is not in favor. Government wants to supply liquor or alcohol home to home, right? घर घर में वो लिकर भेजना चाहते हैं, होम डिलीवरी करना चाहते हैं. They are supportive of that. Supply will increase. Whatever is the policy, if it is favorable for your product or for a given product, उसका सप्लाई इंक्रीज होगा, अदरवाइज इट विल डिक्रीज. लाइक गुटखा वगैरह, तंबा, गुटखा के अगेंस्ट है गवर्नमेंट, सो सेल ऑफ गुटखा इज वेरी लेस. आई डोंट नो गुटखा होता भी क्या है, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है? सो मावा वगैरह कुछ तो, ठीक है, गवर्नमेंट इज अगेंस्ट दैट. इट इज आई थिंक बैंड इन महाराष्ट्र. गुजरात में लिकर इज बैंड. सो सप्लाई ओवरऑल लेस है. ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेल नहीं होता होगा, आई डोंट नो, राउंड रिलेटिव मुझे भी नहीं पता. बट सपोज ऐसे पकड़ के चलो कि लिकर इज बैंड इन गुजरात, so you don't get liquor, supply will be less. महाराष्ट्र में सपोज मावा, गोवा, जो कुछ भी होता है, आई डोंट नो, राइट, वो उसके अगेंस्ट बैन है, दैट इज बैंड. यू वोंट गेट दैट. पाकिस्तान में इंडियन मूवीज, लाइक अच्छी मूवीज, दंगल जैसे मूवीज को बैन है. सप्लाई इज लेस ओवर देयर. एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, राइट? सो सप्लाई ऑफ द मूवीज इन द पाकिस्तान इज लेस फॉर दैट पर्टिकुलर मूवी, मैं बोल रहा हूँ. सो इंडिया का गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी चीज के अगेंस्ट है, तो उसका सप्लाई क्या रहेगा? लेस रहेगा. नेक्स्ट 9. 9. So M stands for majors, right? Development cost, export import, taxation, right? Sorry, technology था. Expectations, reserve stock, majors of government. I stands for infrastructure. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, व्हाट इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर? रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, राइट ना?
Then communication, like telecommunication, like e-commerce. देखो ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज कितने एक्सपांड हुए हैं बिकॉज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल उतनी है. पहले अमेजोन वगैरह खाली सिटीज में डिलीवरी करता था. रिसेंटली आई हैड वेंट टू माय होम और वहां पे अमेजोन की डिलीवरी आती है. आई वाज सरप्राइज. एकदम रिमोट विलेज है, एकदम रिमोट विलेज है. यू गेट प्रोडक्ट फ्रॉम द अमेजोन डियर. क्यों? वहां पे कुरियर वगैरह सब है. लोग गांव में आता है, आपको तहसील पे भी जाके लेना नहीं पड़ता है. गांव में आता है वो. एक दिन एक्स्ट्रा लगता है नॉर्मल पुणे में जाने से, 1 या 2 दिन ज्यादा लगते हैं, बट घर पे आता है. एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे घर वाले या बाकी लोग जो है वो अमेजोन पे बाय कर रहे हैं बिकॉज सस्ता है, ब्रांडेड मिलता है. फिर राइट, देयर इज रिटर्न पॉलिसी एज वेल. सो देखो ना सप्लाई कहाँ तक गया है, इंक्रीज हुआ है ऑब्वियसली. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट है, राइट, रेलवेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन. जो हाथ से प्रोड्यूस होता है वहां से रिमोट लोकेशन में लेके जाने के लिए जो जो चाहिए वो सब चीजें हैं. तो सप्लाई विल इंक्रीज. आप एक्सपोर्ट कर सकते हो. योर पोर्ट्स, योर एयरपोर्ट्स, एवरीथिंग, रेलवेज, रोड ट्रांसपोर्टेशन, internet, so that you can reach to the customers and you can sell more. Supply will obviously increase. And महाराष्ट्र जैसे डेवलप स्टेट में सप्लाई तो सबसे ज्यादा होगा इंडिया में, ऑब्वियसली होगा, होगा ही होगा. एंड दैट इज रियलिटी कि महाराष्ट्र इज वन ऑफ द डेवलप स्टेट. राइट, इट इज फार 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 बेटर देन इवन गुजरात. यही रियलिटी है, लोग मानते नहीं बट दिस इज रियलिटी. इट इज फार 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 बेटर देन गुजरात. सो एंड पुणे इज ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट सिटी. राइट. सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पे ये सब फैसिलिटीज है तो देखो ना, यहाँ पे पुणे में सब कुछ है, हॉस्टल्स है, मेस है, एवरीथिंग है. कॉलेज वगैरह कितने हैं अपने पास पुणे में? एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग. हमें बाहर नहीं जाना पड़ता कोई चीजों के लिए. अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो सप्लाई भी ज्यादा रहेगा. कंपेयर सम अदर कंट्रीज, कंपेयर विथ नेपाल या ज्यादा लोग अदर कंट्रीज, कंपेयर अदर स्टेट्स इन इंडिया, मे बी बिहार, मे बी यूपी. राइट, they are as compared to Maharashtra, they are far backward. वहां पे उतना सप्लाई नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम सेम ही कंट्रीज की बात कर रहे हैं. सो महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल अच्छी है एंड देयरफॉर राइट, महाराष्ट्र वैसे पहले से डेवलप्ड है, दैट इज राइट, वो पहले से. सो यहाँ पे सप्लाई का लेवल ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स. अगर आप एकदम ईस्टर्न स्टेट में जाते हो, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे सप्लाई करना भी है तो कैसे करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड. एकदम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाते हो जिनकी कनेक्टिविटी इशू है, अगर ऐसे है पहाड़ी एरिया वगैरह, तो उसमें नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल. राइट, डेवलपमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सप्लाई साइड. ठीक है, सो लिख लेना. राइट, सो इट इज वन ऑफ द important factor which decides the supply. Number 10. I हो गया. N, nature of natural conditions. Natural conditions do impact supply. फ्लड वगैरह आता है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाता है. फ्लड आने की वजह से राइट, या हेवी रेन होने की वजह से इट इज आल्सो नॉट गुड फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का राइट, दैट इज नॉट गुड. एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का सप्लाई कम हो जाएगा. रेन ही नहीं है 1-2 साल तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही नहीं होगा. सो हेवी रेन इज आल्सो नॉट गुड. एकदम नो रेन इज आल्सो नॉट गुड, मॉडरेट होना चाहिए. बट नेचुरल कंडीशंस आर बियॉन्ड द कंट्रोल. During this pandemic, you must have seen supply has decreased dramatically because of the conditions. So और क्या एग्जांपल देना? You have witnessed it, आपको समझ में भी आता है ये सब चीजें, आपने देख रहे हो, आप समझ रहे हो. So supply overall has right depends on the natural conditions. If natural conditions are favorable, in that case supply will be
rate more. अगर natural conditions are not in favor, supply will be less. ये जनरली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के केस में जनरली ज्यादा मैटर करता है. 12. Then last N is the nature of competition. Nature of competition. सिंपल, याद रखने के लिए इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. नेचर ऑफ कंपटीशन. व्हाट डू यू मीन बाय नेचर ऑफ द कंपटीशन? देखो, if there is only one seller like railways and there are large sellers like theaters, like hotels, right, चाय के दुकान, जितने ज्यादा sellers उतना ज्यादा सप्लाई. So nature of competition means number of sellers. ये मार्केट में सीखेंगे एक्चुअली हम, नंबर ऑफ सेलर के हिसाब से हाउ वी डिवाइड द मार्केट. मार्केट चैप्टर आने वाला है इसके बाद. नंबर ऑफ सेलर्स आर लेस. लाइक एग्जांपल रेलवे देखो, राइट. आप ये देखो, टेलीफोन सेक्टर देखो, 4 ही प्लेयर है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज, लेस प्लेयर्स है. तो अगर प्लेयर्स लेस है मतलब सेलर्स आर लेस, ओवरऑल सप्लाई भी क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा. सो नंबर ऑफ सेलर्स आर लेस, सप्लाई इज लेस. मतलब उस मार्केट में इतनी कंपटीशन ही नहीं है, सप्लाई इज लेस. बट राइट, नंबर ऑफ सेलर्स आर लार्ज, सप्लाई विल बी मोर. होटल इंडस्ट्री देखो ना, पुणे में हर चौक में होटल मिलेगा आपको. दूसरा एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो. दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, आईटी सेक्टर देखो, कितना हेवी सप्लाई है इंडिया में, बिकॉज देयर आर दैट मेनी नंबर ऑफ सेलर्स. डॉक्टर्स देखो, हाँ आप बोलोगे ड्यूरिंग पेंडेमिक डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन ऐसा कमी नहीं है. वो जो प्रॉपर डॉक्टर जो उसको ट्रीट कर सकते हो वो कम है. देयर आर मेनी डॉक्टर्स लाइक, अब बाकी भी डॉक्टर्स होते हैं, डेंटिस्ट वगैरह, ये लोग कम है, इन लोगों को कंसिडर नहीं कर रहे ना. दे आर नॉट ट्रीटिंग द कोरोना पेशेंट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, अब जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट उनको बुला सकती है कि आ जाओ बोल के, बट वैसे नंबर ऑफ डॉक्टर्स की इतनी कमी नहीं है. विलेजेस में डॉक्टर्स है ऑलमोस्ट. हाँ, फिर भी है, ऐसे बोल सकता हूँ कि नहीं है, बट एज कंपेयर टू द सप्लाई इज गुड. लॉयर्स, इंजीनियर्स, समझ में आ रहा है. सो अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स रहेंगे, सेलर्स रहेंगे, उतना ज्यादा सप्लाई भी रहेगा, सप्लाई विल बी मोर. दूसरा एग्जांपल मैं दे सकता हूं, एयरलाइंस, दे आर वेरी लेस प्लेयर्स, 5-6 प्लेयर्स रहेंगे, सप्लाई इज लेस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वही प्राइवेट ट्रांसपोर्ट देखो, ये कार, राइट, कैब्स देखो आप, बसेस देखो, प्राइवेट बसेस या महाराष्ट्र डिपो के बसेस देखो, सप्लाई इज टू गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. सो नंबर ऑफ सेलर्स also decides the supply. ठीक है. So these are the determinants of the supply. Let me show you in your textbook. Price of the commodity, state of technology, cost of production, development cost, infrastructure facility, government policy, natural conditions, future expectations about the price, other factors, nature of market, relative prices of other goods, export import, industrial relation, ये other में आ गया, ability of the factors of production, ये other में आ गया. ठीक है. If all the factors are favorable, supply of the commodity will be more and vice versa. As simple as that. ठीक है. So these are the factors of supply or determinants of the supply. Supply depends on them. अगर इसमें से बाकी other than price of the commodity, अगर हम बाकी factors को constant रखते हैं
and खाली price of the commodity changes, we have seen there is a positive relation. If price increases, supply also increases. Price decreases, supply also decreases. Right? अगर वैसे होता है तो वो law of supply होगा. ठीक है? And law of supply के assumptions क्या रहेंगे? No change in the other factors. Other than price, all other remains constant. ठीक है, आज के लिए ठीक है. ठीक है, सो आज यहाँ पे रुकते डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के बाद. एनीवन हैज